कैसे हो दोस्तों? All we can say that in very good healthy condition, definitely. Friends, we are already, we can say that at last level of this chapter number 2, units and dimensions, part 14. In these 13 parts, we have covered dimensions, parallax method, and errors. Today, friends, we would like to cover most time the questions from textbook, NCERT textbook. You know that very well. Some questions associated with error. These are some typical questions of error. Then some questions associated with measurement. But in short, today we would like to cover this chapter, and I can say almost today this chapter will be completed, and from the next lecture we will start chapter number 3, motion in one dimension. But friends, before moving towards the next point, today we would like to cover few very important numericals. You can see here first question just in front of you. This one is the most timely question. Two questions I would like to discuss. First of all, they both are already part of JEE. Don't forget. So concentration required. Here two resistors are given. Number one, R1 100 plus or minus 3 ohm. You know that 100 is the pure value of resistance. Plus or minus, whatever the value plus or minus, it is simply error in the value of resistor R1. Similarly, second resistor is given R2. What is the value of R2? It is 200 plus or minus 4 ohm. 200 is the pure value of R2 resistor, but whatever the error in this 200 ohm resistor, it is plus or minus 4 ohm. यानी मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो पहला रजिस्टर है 100 ओम, उसकी वैल्यू में 3 ओम का एरर हो सकता है. मतलब R1 की वैल्यू 97 हो सकती है और R1 की वैल्यू 103 हो सकती है. प्लस और माइनस 3 ओम इन द वैल्यू ऑफ 100 में 3 ज्यादा हो सकता है, 100 में से 3 कम. इसी तरह R2 की वैल्यू 200 प्लस और माइनस 4, यानी R2 अपन लोग कंसीडर कर सकते हैं 196 और 204 ohm. So in short, these are the two resistors given. You know that resistor, chapter number 4, standard 10th, you know that this is your electrical resistor. याद करो. And this type of resistors, suppose two resistors are given, number 1 and number 2. Check it. And these two resistors are connected by means of two different ways. Number 1, series combination, and number 2, parallel combination. You know that. So first of all, you can see here, find equivalent resistance connected in, find equivalent resistance if they are connected in series. You can see here two resistors are given, and we have to connect these two resistors in a series. If these two resistors are connected in series, then what is the equivalent resistance? Equivalent, that means total resistance. It is also called net resistance. It is also called resultant resistance. Don't worry, after 1 year you will be champion about this word equivalent. Equivalent का सीधा साधा मतलब निकलता है टोटल. अगर ये दोनों रेजिस्टर को अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा. सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थिंक अबाउट द वर्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और आई कैन से टोटल रेजिस्टेंस. बट इन विच सर्कमस्टेंसेस if these two resistors are connected in series? So we'll start. Total resistance RS, S for series. You can see here I have considered S for series. Now tell me, if two resistors are connected in series, then what is the total resistance? How can you obtain total resistance? You can see, suppose these two resistors are connected in series. This is called series combination. Just remember standard 10th, but science chapter number 4. So the total resistance for series combination can be obtained by considering direct addition R1 plus R2. So here total resistance RS is equal to R1 plus R2, you can see.
बट वंस अगेन मैंने बोला ना ये खेल वर्डिंग का है. दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट टोटल रेजिस्टेंस if these two resistors are connected in series. But check these two resistance. Resistor number 1, it has some error, you can see. Similarly, resistance number 2 has also some error. They both are not, you can see that the pure value. और याद करो एरर का फर्स्ट लेक्चर 11th लेक्चर को याद करो, मैंने दो स्लोगन्स दिए थे. एक एरर जब डिस्कस करो तब एक बात याद रखो, कोई पूर्ण पुरुषोत्तम राम नहीं है, किसी में ना किसी में कोई डिफेक्ट है, आप में, मुझ में, सभी में. मगर दोस्तों डिफेक्ट्स अपन लोग नहीं देखेंगे, नेगेटिविटी किसी की भी मत देखो, थिंक अबाउट पॉजिटिविटी, एक फिलोसॉफी है. बट अपन लोग फिजिक्स में वापस आते हैं. सो देयर इज सम एरर इन रेजिस्टेंस R1, there is some error in resistance R2. So obviously if you find net resistance of these two resistors, then this net resistance also has some error. क्योंकि नेट रेजिस्टेंस तो बनने वाला है दोनों से. तो देखो R1 प्लस R2 करो तब नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस मिलता है. मगर R1 प्योर नहीं है, R1 में एरर है. R2 प्योर नहीं है, R2 में एरर है. अगर ये दोनों में एरर हो तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस में भी एरर होगी, RS. तो अपन लोग जानते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा या टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, RS. नो, द टोटल रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड, total resistance for series combination or for series connection combination is simply RS plus or minus delta RS. देखा लास्ट लेक्चर में भी मैंने ऐसा आपको क्वेश्चन करवाया है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन करंट एंड वोल्टेज. इफ देयर इज एरर इन करंट, if there is error in voltage, so obviously there is some error in resistance. But they ask the question about only resistance of the wire, then you know that you have to find pure value of resistance plus or minus error in resistance. ऐसे क्वेश्चन हमने टिपिकल सोल्व किए हुए. सेम स्टोरी, ये लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसे दो रेजिस्टर दिए, अगर इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो उसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो. सो टोटल रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इट इज RS प्लस और माइनस डेल्टा RS. तो सबसे पहले अपन लोग RS फाइंड करेंगे. RS का मतलब है दोनों रेजिस्टर को, यानी कि प्योर वैल्यू रिलेटेड. सो दोनों रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो सो हियर RS that means simply you know that R1 plus R2. ये अपना सीधा फॉर्मूला. कोई भी दो रेजिस्टर को जिसमें एरर ना हो यानी प्योर वैल्यूज कंसीडर करें, then what is the total resistance for the series combination? Obviously by taking summation. So it is 100 plus 200. So what is the value of RS? It is 300 ohm. You know that ohm is the unit of resistance. So RS clear? Now we would like to find delta RS. So how can you find delta RS? Delta RS का मतलब क्या होगा? It is simply called error in net resistance. It is called error in total resistance, but in which circumstances? Once again, delta RS is called error in total resistance when resistors are connected in series. Ready? तो अपने को delta RS फाइंड करना है. तो ऑब्वियसली इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है, ये बहुत जनरल मैंने बोला. It is called error in total resistance. But in very good language, I can say in the world of physics, it is called absolute error. Delta RS का मतलब होगा absolute error in the value of net resistance or total resistance. और अपन लोग तो जानते हैं कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी, ये देखो RS का मतलब है R1 प्लस R2. याद करो कोई दो क्वांटिटीज को ऐड किया जाए या दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया जाए तब वो दोनों क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट एरर है, error in final result, याद करो it is simply the summation of absolute error in individual quantity or individual quantity, you can see. तो ये अपना स्लोगन था किसके लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए. अगर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और पावर आता तो अपन लोग इसका कौन सा एरर लेते थे, फ्रैक्शनल एरर. सो हियर वी वुड लाइक टू फाइंड नाउ डेल्टा RS. डेल्टा RS का मतलब होगा एरर इन total resistance, or I can say absolute error
in a total resistance for series combination, so we write here delta Rs, it is simply delta R1 plus delta R2. अब अपन लोग ये देखो, this is your delta R1 and this is your delta R2, so delta R1 3 ohm and delta R2 simply 4, so delta Rs is equal to simply 7 ohm. So what is your target? Your target to find total resistance for series combination or for series connection, it is Rs plus or minus delta Rs. So what is the value of now Rs? It is already we have found Rs, that means 300 ohm, and plus or minus delta Rs already 7 ohm. So this is your answer, you can see. So first target we have discussed, and it is very easy because series combination, it is very easy. Why? Because we have to think about direct addition, no problem at all. But why this numerical I have selected, and it is called one of the most IMP numerical of this chapter number 2 because of the second segment. First segment, we have to find total resistance whenever resistors are connected in series. But now the same story we have to repeat, but for connected in parallel. याद करो सीरीज पैरेलल, तो सीरीज के लिए तो बहुत इजी, वापस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ. ये 2 रेजिस्टर गिवन, ओके, मैं थोड़ी बहुत इजी लैंग्वेज, यानी अच्छी तरह देखो, 2 रेजिस्टर्स दिए हैं, दोनों रेजिस्टर के ऊपर एक बार नजर फेंको. दोनों रेजिस्टर है वो आप जानते हो सिंपल प्योर नहीं है, क्योंकि दोनों रेजिस्टर में कोई ना कोई एरर है. मतलब कोई एरर वाला बंदा है तो अपन लोग जानते हैं कि इस तरह डायरेक्ट एडिशन यानी डायरेक्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्योर वैल्यू है उसमें एरर है, इधर 200 में एरर है. तो अगर ये दोनों का एडिशन किया जाए, यानी व्हाई वी हैव टू टेक एडिशन, क्योंकि हमें पूछा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इफ दिस 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. अगर ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो इसमें एरर कितनी आएगी. तो ऑब्वियसली टोटल रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इट इज Rs. Rs का मतलब है whenever you consider just pure values 100 और 200. अगर यही न्यूमेरिकल में सोल्व करता, ये दोनों में कोई एरर ना होती, सब R1 100 है, R2 200 है, so what is the total resistance. तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होता, जस्ट चेक इट. टोटल रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कनेक्शन it is simply R1 plus R2 100 plus 200, that means 300 ohm answer. But you know that very well, here R1 is not pure, it has certain error, R2 is not pure, it has also error. तो अपन लोग इस तरह सोल्व कर सकते नहीं, we have to also think प्योर जो रिजल्ट है उसमें भी कुछ एरर आएगी. सो टोटल रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इट इज Rs प्लस और माइनस डेल्टा Rs. समझ में आ रहा है कि नहीं? देखना बराबर. अगर ये प्योर होता तो मैं सिर्फ Rs ही फाइंड करता, क्योंकि ये दोनों प्योर है तो प्योर आंसर ही लेता. मगर अपन लोग जानते हैं R1 और R2 में भी एरर है, तो सीरीज रेजिस्टर का जो फाइनल आंसर रहेगा Rs, उसमें भी एरर होगी. व्हाट इज द एरर इन Rs? इट इज कॉल्ड डेल्टा Rs. तो अपन लोग अब इसमें डेल्टा Rs फाइंड करना चाहते हैं. पहले Rs तो मिल गया 300 ओम, you can see that here. How can you find delta Rs? It is called error, or I can say absolute error in a final result. तो ये डेल्टा R1 है, ये डेल्टा R2 है. So error in or absolute error in series resistance, it is delta R1 plus delta R2, delta R1 3 or delta R2 4, और आंसर 7. तो 300 प्लस और माइनस 7. इन शॉर्ट पहले प्योर फाइंड किया, फिर एरर वाला फाइंड किया और फिर वैल्यू. मगर सीरीज था बहुत इजी. अब यही कहानी थोड़ी अलग जुबानी, यानी कि अब यही कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल के लिए. सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट और इजी. ये न्यूमेरिकल के दोनों पार्ट्स है, सो यू हैव टू कंप्लीट इट, डोंट वरी. नाउ फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल. सो बी अलर्ट, पैरेलल. Okay, so total resistance for series combination, I have to remove it, but first of all analyze it and then we'll remove it. Okay friends, so you can see series already with you. Now we would like to think about total resistance for parallel.
अब देखो मैं सब कुछ हटा देता हूँ और आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में अगर आप मैं इधर देखूं तो पेज नंबर 27 पे एक्सरसाइज नंबर 2.10 है। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 2.10। तो हर एक बंद मैंने बोला है टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, नोट टेक्स्ट बुक कैलसी वो सब कुछ। एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि तुम नोट लेके बैठना है तो विदाउट नोट ही वो बैठा था। तो अपने को पूछा कि भाई क्यों तुम नोट लेके नहीं बैठे, तो बोला सर मैं खुद बड़ी नोट हूँ तो उससे बाद में मैं कौन सी नोट लेके बैठूं, ऐसे ऐसी बड़ी नोट है उसको मेरी विनती है कि आपके साथ छोटी नोट भी लेना लिखने के लिए, डोंट वरी। अब क्वेश्चन क्या है देखो, इफ यू थिंक अबाउट दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 2.10। okay, so your target to find the first of all connected in pair series. Now find total or equivalent resistance if connected in parallel. So total resistance for parallel combination, तो पैरेलल के लिए अपन लोग यूज करेंगे आरपी। रेडी, आरपी प्लस और माइनस डेल्टा आरपी। वंस अगेन आरपी इज द टोटल रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन बट प्योर वैल्यू। मगर अपन लोग जानते हैं इधर दोनों रेजिस्टर में कुछ ना कुछ एरर है, तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा नेट यानी आरपी उसमें भी कुछ एरर होगी। तो ये जो नेट रेजिस्टेंस मिल रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसमें इतनी एरर होगी। आगे थोड़ी देर पहले जब हमने इधर लिखा था सीरीज के लिए आरएस प्लस और माइनस डेल्टा आरएस, अपन लोग इधर लिखेंगे आरपी प्लस और माइनस डेल्टा आरपी। यू कैन सी मोस्ट आई एम पे। तो ये आरपी फाइंड करना जरा टिपिकल है, तो पहले अपन लोग फाइंड करते हैं आरपी प्योर वैल्यू। हाउ कैन यू फाइंड आरपी? Okay, tell me what's the formula of net resistance or total resistance if two resistors are connected in parallel? सीरीज के लिए तो बहुत इजी था, डायरेक्ट एडिशन, या कि कुछ लोगों को याद है, you know that for parallel combination if two resistors are connected in parallel then total resistance it is RP is equal to, एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं देखो आपको, 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। याद करो, इसके बदले अपन लोग ऐसा भी आपके सर ने सिखाया होगा 10th में, RP is equal to R1 R2 upon R1 plus R2। You can use any one, don't worry. In your textbook already hint is given by using or by providing this formula। ऐसे हिंट दिए देखो, चेक करना। सो अपन लोग इसमें वैल्यू रखे, सो नाउ 1 upon RP, RP का मतलब है total resistance for parallel combination, but this is the pure value। Pure value then you have to consider 100 200, so it is 1 upon 100 plus 1 upon 200, R1 100 R2 200। why we are considering pure value? Because we are discussing for pure value parallel combination। so इसको simplify करें, so you know that very well what happened here, 200 plus 100 multiplied by 200 into 100, so 1 upon RP is equal to 300 divided by 200 into 100, 0 0 cancel, 3 divided by 200। but if you think about invert endo, इसको मेरी लैंग्वेज में कहता हूँ गुलाटी, so 200 by 3 and your answer should be 66.7 ohm। this is your answer and this is the net resistance if resistors are connected in parallel। okay, so friends you can see we have discussed parallel combination but this is the pure value। मगर अपन लोग तो जानते हैं कि R1 प्योर नहीं है, उसमें कुछ एरर है, R2 प्योर नहीं है, उसमें कुछ एरर है। तो अपन लोग जानते हैं कि जो RP मिला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए उसमें भी कुछ एरर होगी, वो एरर अपने है डेल्टा आरपी। तो अगर मुझे ऐसा कैसा पूछा जाए कि ये न्यूमेरिकल में सबसे सुप्रीम पॉइंट क्या है, तो यही है। अब जो शुरू होने वाला है जोरदार है, नो डाउट अपन लोग डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, मगर फ्यूचर में मैं आपको इसको डिराइव करके बताऊंगा, क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल है जिसमें अपन लोग चैप्टर 3 में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो अगर अच्छी तरह देखा जाए पेज नंबर 27 पे,
इलास्ट्रेशन नंबर 2.10 को देखो तो उसमें वो लोगों ने हिंट दी है फॉर आरपी। नाउ फॉर डेल्टा आरपी यू कैन सी, इफ यू think about delta rp upon rp, delta r1 upon r1 square plus delta r2 upon r2 square. This formula already given, so we have to direct accept. Don't worry why this equation is available. We can derive it by using concept of differentiation. It is a mathematical tool, but at present time there is no requirement, so we have to direct accept. Don't worry. So और ये शॉर्टकट है वो बी ग्रुप वाले है वो तो दिमाग में ऐड कर ही दे. इट इज वन टाइप ऑफ JEE नीट कंसेप्ट, क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी फॉर्मूला है. काफी बार ये लोग पैरेलल का क्वेश्चन पूछेंगे. तो अपने पास आरपी आ गया है. अब अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है, जस्ट कि डेल्टा आरपी. सो स्टार्ट डेल्टा आरपी, दिस इज योर टारगेट. आरपी वो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि वैल्यू जानते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरपी? सो इट इज, यू कैन सी दैट आरपी ऑलरेडी वी हैव फाउंड 66.7 is equal to you can see the delta r1. What is the value of delta r1? 3 divided by r1 square, r1 100 the whole square, plus delta r2. What is the value of delta r2? 4 divided by r2 square, 200 the whole square. So therefore delta rp is equal to, अब देखो इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने एक्चुअली इसमें कोई दिया नहीं मगर अपन लोग डायरेक्ट लिख दिए. डेल्टा आरपी है पोर्शन को इस तरह में भेज देता हूँ. देखो 3 अपॉन 100 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 66.7. दिस डिनोमिनेटर get transferred to opposite side, so it comes in the form of multiplication. And if you simplify by using calc, then there is answer 1.8 ohm. It is already given in textbook, so don't worry. So this is your delta rp. So what is the, we can say that error, or I can say sorry, total resistance in we can say that sorry, total resistance for parallel combination, it is, you know that rp plus or minus delta rp. But what is the value of rp? Rp already we have found, it is 66.7. because to find rp we have to consider only pure value. वापस मैं बोल रहा हूं कि अगर ये न्यूमेरिकल में ये प्योर वैल्यू देते r1 100 r2 200, then numerical is completed up to here, no problem. But here problem is that you can see r1 has some error, r2 has some error. So obviously जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए उसमें भी एरर आएगी. तो ये आरपी में जो एरर है वो डेल्टा आरपी, और आरपी का जो डेल्टा आरपी फाइंड करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. एरर फाइंड करने का फॉर्मूला याद रखना है, मोस्ट आईएमपी. ओके, यू कैन सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर you can see that JEE need point of view. So delta rp upon rp, delta r1 upon r1 square plus delta upon r2 square. अपन लोग इसमें जिसे कह सकते वैल्यू रख के फाइनल आंसर किया, इसमें मैं वैल्यू रख देता हूं. सो दिस इज योर, वी कैन से दैट फाइनल आंसर 67 point plus or minus 1.8 ohm. So this is, you can see that the question, but for parallel combination of resistors. वापस देखो ये पूरा न्यूमेरिकल है 2.10. First of all they ask the question in terms of series, and then the same question particularly for parallel combination. Very very important question. Okay, so just analyze and then we will revise it again. Okay friends, so now concentration required. Again we will revise this story. ओके, जिसको ना समझ में आए वापस देखें. हमें दो रजिस्टर दिए हैं और दोनों रजिस्टर को पहले सीरीज में कनेक्ट किया, तब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने का पूछा. तो देखो याद रखो, वर्डिंग इंपॉर्टेंट है. सिर्फ रेजिस्टेंस पूछे तो आपको ये देखना है कि हमें जो रेजिस्टर्स दिए हैं
वो प्योर है कि एरर वाले हैं। इधर आप देखो कि हमें जो रजिस्टर दिए है उसमें कुछ एरर है, मतलब ये दोनों रजिस्टर को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं या पैरेलल में कनेक्ट करूं, ये दोनों रजिस्टर में एरर है, मतलब मेरा जो नेट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस आएगा सीरीज के लिए या पैरेलल के लिए उसमें एरर होगी होगी होगी। तो अपन लोग पैरेलल के लिए डिस्कशन करें। सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर ये दोनों रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो सो टोटल रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कनेक्शन इट इज आरपी प्लस और माइनस डेल्टा आरपी। वाई प्लस और माइनस डेल्टा आरपी, क्योंकि इधर दोनों में एरर है, यानी पैरेलल होगा टोटल रेजिस्टेंस होगा आरपी। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये दोनों रेजिस्टर को, कोई भी दो रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करो तो उसका नेट रेजिस्टेंस मिलता है आरपी, मगर वो दोनों रेजिस्टर प्योर हो तो। इधर प्योर नहीं है, इधर प्योर नहीं है मतलब आरपी है उसमें भी कुछ एरर आएगी, इट इज डेल्टा आरपी। अगर ये ना होती एरर तो न्यूमेरिकल यहाँ पूरा हो जाता, ये न्यूमेरिकल ये खत्म, पूरा ये करना ना पड़ता। मगर अपन लोग जानते हैं कि जो दो रेजिस्टर्स हमें दिए हैं उसमें एरर है, मतलब हम जो नेट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे उसमें भी एरर होगी। तो पहले अपन लोग फाइंड करेंगे प्योर वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैंने वैल्यूज रखी देखो और एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया, आंसर है 66.7। सो दिस इज योर आरपी, बट नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड डेल्टा आरपी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला और शॉर्टकट टू फाइंड द एरर फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो ये शॉर्टकट आपको याद ही रखना है, इसको अपन लोग डिराइव भी कर सकते हैं। मैं डिराइव करूं तो 20 मिनट दूसरी निकल जाएगी और आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फंडे पता नहीं, जो मैथ्स में स्टैंडर्ड 12th में आते हैं और 11th में एंड में आते हैं, इसलिए अपन लोग इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। और बी ग्रुप वाले तो इसको जेडब्ल्यू नीट कॉम्पिटिटिव वाले तो इसको दिमाग में रखेंगे। सो डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इज इक्वल टू डेल्टा आर1 अपॉन आर1 स्क्वायर प्लस डेल्टा आर2 अपॉन आर2 स्क्वायर। इन व्हिच सर्कमस्टेंसेस दिस इक्वेशन इज अप्लाइड? whenever two resistors are connected in parallel and we would like to find error in this parallel combination. So delta rp already we have found, delta r1 it is already 3 ohm, r1 100, but there is a square of r1, so 100 square plus delta r2 already 4, so 4 r2 square, so 200 the whole square. Set up the value, simplify, you will get 1.8 ohm. So what is the total resistance for parallel combination? It is rp plus or minus delta rp. Rp already with us, we have found here, and delta rp already we have found. So set up the value and this is your answer. This is, you can see that your textbook question number 2.10 illustration, very important numerical. Okay friends, तो अब अपन लोग इसको आप अच्छी तरह रिवाइज करो, एक दो बार वीडियो को घुमाओ, डोंट वरी। नाउ वी वुड लाइक टू सॉल्व द मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर 2। आज के लेक्चर के अगर कोई दो हीरोज है तो उसमें पहला हीरो हमने डिस्कस किया वो, और अब अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड, जिसे कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल, जो ऑलरेडी जेडब्ल्यू में पूछा हुआ है। तो ए ग्रुप वाले जरा देखो, और बी ग्रुप में भी चांस है ही, क्योंकि क्रॉस कनेक्शन पूछते हैं। सो ये जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन मोस्ट टाइम की है, और डेफिनेटली नेक्स्ट जो ट्यूसडे की टेस्ट है अपनी जेडब्ल्यू नीट में, उसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो भी थोड़ा ट्विस्ट करके। ये मेरी आपको ऑलरेडी एक चैलेंज है, वो आपको एक्सेप्ट करनी है, मोस्ट आईएमपी। तो मैं जो क्वेश्चन सोल्व करना जा रहा हूँ वो है आपका इलास्ट्रेशन नंबर 2.12। दिस इज ऑलरेडी आस्किंग जेडब्ल्यू, डोंट फॉरगेट, सो वेरी आईएमपी। ओके, मैं डेटा रीड करता हूँ, डेटा में जो रीड करता हूँ उसमें जो पंच लाइन है उसको आपको अंडरलाइन करनी है, मैं इधर लिखूंगा भी। The period of oscillation of simple pendulum, there is a simple pendulum. So tell me, what is the periodic time of simple pendulum? 2 pi under root L by G. And what do you mean by periodic time? Periodic time का मतलब आपको मैंने बताया है time taken by oscillator to complete one oscillation. Periodic time, dimensions के लेक्चर देख लेने का। Okay, next. Here the measured value of length, देखो मैं साथ में कंसेप्ट क्लियर करवाता जा रहा हूँ। This is your simple pendulum. This is called rigid support.
there is a string, and at the free end of the string you can see this type of bob is connected, a massive board is connected. Okay, this is called bob. Whatever the massive body is connected at the end of the light inextensible string, it is called bob. और अब इसको आप ऐसे करो, सो ये ऐसे मोशन करेगा, यू कैन सी ये आपका बन गया सिंपल पेंडुलम। इधर आएगा, इधर से वापस, फिर इधर, ये सब उसकी पोजीशन है, देखो ऐसे। दिस इज कॉल्ड पीरियड, सॉरी पेंडुलम। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक टाइम? देखो यहाँ से मोशन शुरू हुई, 1 2 3 4, जहां से निकला इधर एक्सट्रीम गया, वापस मेन पॉइंट पे आया, वापस एक्सट्रीम और वापस, इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। देखो 1 2 3 4, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगे, सपोज 2 सेकंड लगा, तो उसको कहते हैं पीरियोडिक टाइम ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन कब कहते हैं? 1 2 3 4, then it is called periodic time. Okay, so here already length of, this is called length of pendulum. ये जो distance है उसको कहते हैं length of pendulum. So length of pendulum given 20 centimeter, L 20 centimeter, capital L, and known to 1 mm accuracy. 1 mm accuracy, that means whatever the length is measured, what is the error in length? It is 1 mm. So this 1 mm accuracy, it is called simply delta L. It is 1 mm. Okay, next point. Here we would like to think about the next point. Next point, accuracy and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds. So for 100 oscillations, whatever the time is taken by the एक oscillation, देखो 1 2 3 4, ऐसे टोटल 100 oscillations के लिए टाइम दिया है 90 सेकंड। ओके, फॉर 100 oscillations टाइम 90 सेकंड, and whatever the watch with us, wrist watch is given to you to measure this time. What is the resolution or accuracy? It is 1 second. If you read the data, resolution का मतलब है अगेन एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। कोई बोले आपको कैसे पता चला टाइम? क्योंकि रिस्ट वॉच का रिजोल्यूशन दिया है, एंड ये वॉच इज यूज्ड टू मेजर टाइम। सो रिजोल्यूशन ऑलरेडी 1 सेकंड, दिस इज योर डेल्टा टी। देखो टाइम में जो एरर है वो डेल्टा टी। अब सभी बंदे फ्रेंड देखो, दिस इज योर टी, यू कैन सी दैट 90 सेकंड। ये न्यूमेरिकल बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल है। लोग इसमें कभी कभार समझने में लोचे मार देते, इसलिए अपन लोग क्लियर कट जाएंगे। आपको ये पेंडुलम दिया है, इसको कहते हैं उसका लेंथ। ये लेंथ मेजर करता हूँ, एग्जैक्ट टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मगर ये लेंथ जब मैंने मेजर की उसमें जो एरर के चांसेस है वो 1 mm। सो दिस 1 mm इट इज कॉल्ड एरर इन लेंथ। फिर अपन लोग ये ऑसिलेशन शुरू करता है। 100 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए इस पेंडुलम को 90 सेकंड लगता है, यानी टाइम 90 सेकंड है। ओके, मगर जो अपन लोग टाइम मेजर कर रहे हैं उसके लिए आपको एक रिस्ट वॉच दी है, मगर वो रिस्ट वॉच में भी हम जानते हैं एरर होती है इंस्ट्रूमेंट में। तो जो रिस्ट वॉच है उसका एरर है वो जो मेजर कर सकते हैं टाइम, उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड की एरर आ सकती है। सो डेल्टा टी इट इज 1 सेकंड। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा टी? इट इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, मगर इस न्यूमेरिकल में लोचे कहाँ पे होते हैं? इधर टाइम है और काफी स्टूडेंट इधर भी टाइम है, ये दोनों डिफरेंट है। डोंट फॉरगेट, दिस इज द जनरल टाइम, दिस इज द टाइम टेकन बाय ऑसिलेटर और सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट 100 ऑसिलेशंस। जबकि पीरियोडिक टाइम का तो वास्ता, पीरियोडिक टाइम का तो नाता सिर्फ और सिर्फ कितने ऑसिलेशन के लिए होता है? ओनली फॉर 1 ऑसिलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो न्यूमेरिकल बाकी कुछ नहीं, पपुड़िया जैसा है। अब अपन लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल को सोल्व करवाता हूँ। अब आपके पास जो डेटा है उसको अपन लोग थोड़ी देर साइड में रख देते हैं। ओके, ये अपना बेसिक आ गया, फिर मैं वापस रिवाइज करूंगा, डोंट वरी। सो स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? देन फाइंड, यू कैन सी दैट एक्यूरेसी इन डिटरमिनेंट्स ऑफ जी, दैट मींस फाइंड एरर इन, वी कैन से दैट जी। जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, T
टी एल जी, इसमें जी में कितना एरर आएगा वो हमें फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। चलो इसका स्क्वायर लेते हैं। कोई बोले वो आप रट्टे मार के आते हो इसलिए आपको पता चल गया स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लेने का? स्क्वायर लेने का रीजन है मुझे जी को सब्जेक्ट फॉर्म में लाना है। व्हाई? बिकॉज आई वुड लाइक टू फाइंड एरर इन जी, सो जी शुड बी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एरर, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सो जी gravitational acceleration g is equal to, I can write 4 pi square l upon t square, just check it, इसको g को इधर ले t square इधर, तो ये आपका बन गया बेसिक इक्वेशन। ऐसा न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया, डोंट वरी, मगर ऐसा मसाला मारा हुआ ना, इजी। अब अपन लोग इसका एरर फाइंड करें, सो डेल्टा g बाई जी इज इक्वल टू स्टार्ट क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट तो भूल जाने का एरर में, अब आया l, सो डेल्टा l बाई l प्लस 2 डेल्टा t बाई टी। l का होगा डेल्टा l बाई l प्लस टी स्क्वायर यानी 2 डेल्टा t बाई टी। यहां तक किसी को डाउट हो तो पहले अपन लोग वो रेक्टिफाई कर देते हैं। चलिए शुरू करते। सबसे पहले इक्वेशन दिया है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, बाय टेकिंग स्क्वायर g should be required in the form of subject, 4 pi square you know that very well, constant term, so in error there is no application of concept of error for constant term, तो हटा दिया। अब g में एरर डेल्टा g बाई जी, क्यों डेल्टा g बाई जी लिया, why not only delta g, anybody, why I have considered delta g by g, because whatever the equation of g given here, length upon t square, एक तो upon यानी डिवीजन, डिवीजन है प्लस पावर, डिवीजन हो पावर हो, then you know that very well we have to think about fractional error, so fractional error in g is equal to fractional error in length plus whatever the power, it is just ahead of fractional error in periodic time। ये कंसेप्ट आपका 11 12 13 अच्छा होना चाहिए। ओके, अब कोई बोले तो न्यूमेरिकल इजी। अब देखो यहाँ पे मार्क्स कहाँ पे जाते लोगों के, ये बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सीधा ऐसा करते हैं, डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा है, व्हाट इज द डेल्टा, इट इज 1 mm, 1 mm, हाउ मेनी सेंटीमीटर, जस्ट चेक इट, 1 सेंटीमीटर 10 mm, तो 1 mm इट इज सिंपली 0.1 सेंटीमीटर हो गया, पता चला, डिवाइड बाय 10। तो काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेल्टा 0.1 l 20 प्लस 2 डेल्टा t इधर कितना डेल्टा t दिया है 1 सेकंड अपॉन टाइम, टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो टाइम दिया 90, ये रख के आ जाते हैं। ये बहुत ही रोचे, क्योंकि ये पीरियोडिक टाइम है और ये जनरल टाइम है। देखो स्मॉल t और कैपिटल T में डिफरेंस, here small t representing time for 100 oscillations while capital T representing time for only one oscillation। तो पहले तो अपने को ये 90 सेकंड 100 oscillations के लिए, तो एक oscillations के लिए क्या है पहले वो हमें फाइंड करना पड़े, इसलिए ध्यान रखना ये बहुत ही चिकना केस है। तो अपन लोग अब जिसे कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करते हैं, यानी कि लिखते, देखो अब ये भी टाइम है नो डाउट। अब अपन लोग पहले 100 oscillations then time 90 सेकंड, so I can write for 100 oscillation whatever the time it is 90 second, so therefore for one oscillation whatever the time it is called periodic time, it is capital T। so एक oscillation के लिए जो टाइम लगे उसको t कहेंगे, तो t क्या होगा 90 upon 100 यानी कि 9 by 10 यानी 0. you can see that 9, तो ये हो गया, you can see that 100 oscillations के लिए टाइम दिया है simply 90, you can see, okay, and sorry 100 oscillations के लिए 90 second, so what is the time taken for one oscillation, it is 90 by 100, so 0.9 obviously। तो अपने पास जिसे कह सकते, देखो ये जो पॉइंट आया है, अब ये वैल्यूज अपने को मिल गई, ये पीरियोडिक टाइम t मिल गया, मगर पीरियोडिक टाइम जिसे कह सकते हैं कि फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, इधर जो दिया है वो टोटल टाइम दिया है 90 सेकंड, इट इज टोटल टाइम, यू कैन सी। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी वुड लाइक टू सेट अप द सिस्टम। अब इसमें अपन लोग वैल्यू रखते हैं, डेल्टा g बाई जी, डेल्टा l ऑलरेडी 0.1, l व्हाट इज द l, L is the total length, it is 20 सेंटीमीटर। अगर मैं स्मॉल में कर दूं तो भी टेंशन है, कुछ लोग बोले इधर तो कैपिटल है, नो प्रॉब्लम,
plus multiply by 2. Now delta t. What is the error in measurement of periodic time? It is 1 second. Okay, divide by, you can see that 0.9. It is capital T. And now if you simplify, here accuracy 100 oscillations for the pendulum found to be 90 seconds using wristwatch. Okay, now all values with us. So delta T already 1 second and capital T already given. Okay, time for 100 oscillations for the pendulum is found to be 90 seconds. Okay, now set up the value and now simplify. So if you simplify, then your answer should be, what is the, you can see that your answer approximately 0.005 plus 0.02 and is 0.027, either 22 ऐसा आंसर आएगा, डोंट वरी, 0.027. सो परसेंटेज में जाना हो तो अप्रोक्सीमेटली 2.7%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए. So finally 3% approximately. So this is, you can see that in terms of percentage error we have found. Your target to find percentage error in G. So it is your answer. अब काफी लोगों को एक जगह समझ में नहीं आया, मुझे पता है. कोई बोले सर इधर तो आपने कैपिटल टी ले लिया, ओके, मगर इधर डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी. सो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट. अब देखो जनरली में अगर ये टी की जगह ऐसा करता, देखना अभी ये जो मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ मोस्ट टाइम की. So for n oscillations, instead of 100 oscillations, suppose there is n oscillations. So for n oscillation, whatever the time required, it is small t. ये देखो 100 oscillations के लिए 90 second, 90 second क्या था t. And so for one oscillation, whatever the time required, it is capital T. So capital T का मतलब होगा t by n. You can see t by n. Okay, so here this is your most time T formula. जब भी आपको पीरियडिक टाइम फाइंड करना हो तब ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो. अब इसमें अपन लोग एरर अप्लाई करें. सो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई स्मॉल टी. एन तो नंबर है, नंबर तो कांस्टेंट है, तो आ गया डेल्टा टी बाई टी की जगह डेल्टा टी बाई टी. तो अपन लोग डेल्टा टी बाई टी की जगह अब डेल्टा टी बाई स्मॉल टी यूज कर सकते हैं. तो इधर जिसे कह सकते हैं डेल्टा टी बाई टी की जगह डेल्टा टी बाई स्मॉल टी भी यूज करो तो भी न्यूमेरिकल है वो सोल्व हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम. मगर फंडामेंटली कैपिटल टी का मतलब समझना है, वो इंटरेस्टिंग है. तो यू कैन सी इंस्टेड ऑफ डेल्टा टी बाई टी वी हैव रिप्रेजेंटेड हियर डेल्टा टी बाई स्मॉल टी. तो ये जोरदार पॉइंट, पीरियडिक टाइम में ना जाना हो, ऐसा कुछ ना करना हो तो सीधा देखो इधर डेल्टा टी बाई टी की जगह स्मॉल टी रख दो. तो मैं वापस न्यूमेरिकल को अब चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको पता चले डायरेक्ट. देखो ये सब कुछ मैं समझा रहा हूँ, अभी टेंशन मत लेना, फाइनल तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी. तो नाउ यू कैन सी देखो अभी यहाँ से ऐसे गए. नाउ डेल्टा जी बाई जी डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा स्मॉल टी बाई टी आ गया. Now you can see that what is delta L? Delta L 0.1, L already 20 plus 2 delta T, it is 1 second and T here we can consider 90. अब simplify करो तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा. You will get 0.027 delta G by G. And if you multiply by 100, percentage error in delta G by G is equal to 0.027 multiplied by 100 यानी 2.7% approximately 3%. तो देखो ये जोरदार कहानी है. इधर मैंने चेंज किया, वो जरा ध्यान रखने का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब देखो मैं पूरा न्यूमेरिकल मैंने परफेक्ट फॉर्म में बता दिया. पहले मैंने बताया उसमें क्या गलती हो सकती हो, दूसरा फॉर्म है इजी, और ये जो है सिस्टमेटिक वे में कोई यानी कोई बंदा आपका मार्क्स ना काट सके इस तरह. तो शुरू करते सबसे पहले ऐसा आपको एक पेंडुलम दिया है. ये पेंडुलम का देखो जिस लोगों को स्ट्रक्चर पता नहीं इसलिए मैंने इधर डायग्राम ड्रॉ किया है. उसकी ओरिजिनल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मगर लेंथ मेजर करने में एरर है 1 mm. ये लेंथ है उसमें एरर आती है 1 mm. 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर.
फिर अपन लोग इसका ऑसिलेशंस मेजर करते हैं। 100 ऑसिलेशंस के लिए इधर 90 सेकंड चाहिए। तो जब हम लोग जिस घड़ी से ये टाइम मेजर करते हैं 90 सेकंड, तब वो घड़ी में एरर है, वो घड़ी का जो मैक्सिमम परमिसेबल एरर है वो 1 सेकंड, यानी डेल्टा टी मेजरमेंट जो टाइम का है उसमें एरर है 1 सेकंड। तो अपने को परसेंटेज एरर इन जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन दिया है, आप चेक करो 2.12। अब इसमें t इज 2 पाई एल बाई जी, पहले स्क्वायर किया, जी को सब्जेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे आके सब कुछ जिसे कह सकते हैं लोगों को यहाँ तक तो दे धनाधन न्यूमेरिकल। उसके बाद के जो ये स्टेप्स है वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी नहीं होंगे, इसलिए ध्यान रखो खास। फॉर एन ऑसिलेशंस, अगर ये पेंडुलम एन ऑसिलेशन करे उसके लिए जो टाइम लगे उसको स्मॉल टी कहे। सो फॉर वन ऑसिलेशन व्हाटएवर द टाइम टेकन इट इज कैपिटल टी। सो कैपिटल टी का मतलब होगा टी बाई एन मोस्ट टाइम। मगर मैं इसको एरर में फॉर्म में रखूं, सो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी। एन तो नंबर है, सो नंबर का टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, यू कैन सी। सो दिस इज द मोस्ट टाइम नंबर कांस्टेंट, सो डेल्टा टी बाई टी। तो अपन लोग डेल्टा टी अपॉन कैपिटल की जगह डेल्टा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी रख सकते हैं। इसलिए इधर देखो, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज, डेल्टा टी बाई टी की जगह डेल्टा स्मॉल टी बाई स्मॉल टी। अब इसमें वैल्यू डेल्टा एल 0.1, एल 20 plus 2 delta small t, that means error in time, it is 1 second, and total time for, we can say that n oscillations, it is already 90, so t90. Set up the value, simplify, get answer. Superb. ये क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करके पूछूंगा, आप ट्राई करो, ना पता चले तो मुझे कॉल करके बताओ, वापस अपन लोग एक बार देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मगर ये न्यूमेरिकल जेडब्ल्यू में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट, so analyze it. Okay friends, so now we would like to think about a few more questions, and from you can see that NCERT related last page point of view में मैंने no doubt काफ़ी कुछ जिसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन है वो डिस्कस करने का सोचा है। टाइम देखते थोड़ा और लेते हैं। अब अपन लोग ने एरर रिलेटेड सब डिस्कस किया। नाउ वी वुड लाइक टू वन मोर क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। तो ऐसा होता है, और लेक्चर लेंगे, डोंट वरी। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये दोनों क्वेश्चन भले टाइम खा जाए अपना, मगर ये दोनों क्वेश्चन मैंने बोला माशाल्लाह मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, सो डोंट फॉरगेट। Okay friends, now we would like to solve few more important question. अब जो क्वेश्चन है उसके पूछने के चांसेस बहुत ही कम, और ऐसे क्वेश्चन से हम लोग इसलिए कवर करना चाहते हैं ताकि आपके स्कूल में कोई एग्जाम हो उसमें पूछे तो भी टेंशन नहीं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी, और आईएमपी मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक रिलेटेड जब क्वेश्चन पेपर आए तो, और स्कूल रिलेटेड जेडब्ल्यू नीट के लिए इसका जैसे कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल पॉइंट ठीक था। फिर भी अपन लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। सो अब मैं सोल्व करवाता हूँ एक्सरसाइज, यानी अनसोल्ड नंबर 2.16, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट इट इज 1 एंगस्ट्रॉम। द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो ऐसा हाइड्रोजन एटम दिया, दिस इज हाइड्रोजन एटम, इसका साइज दिया है, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट मींस डायमीटर इज गिवन, इट इज 1 एंगस्ट्रॉम, ओके, and size of hydrogen atom is about 0.5 angstrom. So this is, you can see the total 1 angstrom, so this distance 0.5 angstrom, so here radius 0.5 angstrom. Okay, next point here, what is the next point? We would like to think about it. Radius given 0.5 angstrom. Now what is the total atomic volume in a meter cube of 1 mole hydrogen atom? Your target to find total atomic volume. ये केमिस्ट्री जैसा है कुछ, डोंट वरी। इन मीटर क्यूब ऑफ
1 mole of hydrogen, you can see 1 mole of hydrogen atoms. चलो, सो न्यूमेरिकल क्या ऐसा है कि हाइड्रोजन एटम दिया जिसका रेडियस है 0.5 एंगस्ट्रॉम, then your target to find total atomic volume of 1 mole of hydrogen atoms. तो डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो ये 1 मोल हाइड्रोजन है इधर, 1 मोल केमिस्ट्री अगर ना पढ़े तो भी मैं सिखा देता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल मटेरियल? 1 मोल मटेरियल दैट मीन्स देयर आर 6 point, don't forget, 6.023 into 10 raised to 23 atoms present. 1 mole material that means 6.023 into 10 raised to 23 atoms are present. It is called 1 mole material. What do you mean by 1 mole? अब 1 mole hydrogen atoms बोले मतलब how many number of hydrogen atoms present in 1 mole gas? अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस है मतलब उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, ऑलवेज कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इसको अपन लोग कहते हैं एवोगेड्रो नंबर. यू नो दैट केमिस्ट्री, इट इज कॉल्ड एवोगेड्रो नंबर. इट इज डिनोटेड बाय Na. एनी टाइम देयर इज अ 1 मोल सब्सटेंस, then how many number of atoms, always equal to एवोगेड्रो नंबर्स. तो आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स. तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स में हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, कितने एटम्स होंगे? तो अपन लोगों को पता चल गया टोटल इतने एटम्स है. हमारे पास एक एटम का रेडियस है. सबसे पहले हम लोग एक एटम का वॉल्यूम फाइंड कर ले तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का भी अपने को वॉल्यूम मिल जाए. सो वी स्टार्ट विथ वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम. 1 हाइड्रोजन एटम, it is V is equal to, what do you mean by V? V is the volume of only one hydrogen atom. Keep in mind, atom always considered in spherical shape. So what is the volume of spherical shape? Volume of spherical shape, it is 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3 pi r cube. This is, you can see that volume of one hydrogen atom. तो एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम इतना है. ओके, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम में तो टोटल कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? इतने. तो अपन लोग लिख सकते हैं सो देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, इट इज V टोटल या V मोल. V मोल का मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल. चलो, एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम इतना, तो टेल मी इन 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट? एक मोल हाइड्रोजन में इतने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे. तो एक का वॉल्यूम इतना, तो इतने का कितना मतलब Na नंबर का कितना. तो सीधा ये याद रखने का, इट इज, यू कैन सी दैट Na मल्टीप्लाई बाय 4 by 3 pi r क्यूब. पता चला, एक का वॉल्यूम 4 by 3 pi r क्यूब. इधर देखो ऐसे 1 एटम देन वॉल्यूम 4 by 3 pi r क्यूब. तो एवोगेड्रो नंबर का कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया. आज से ये फॉर्मूला याद रखना है धूम. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एनी 1 मोल सब्सटेंस. कोई भी 1 मोल सब्सटेंस, इधर हाइड्रोजन छोड़ो, एनी 1 मोल सब्सटेंस, देन इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. सो Na, what do you mean by Na? It is 6.023 into 10 raised to 23 fixed, multiply by 4 by 3 pi Na 3.14 r already, radius 0.5 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम यानी कितना मीटर? 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर. याद करो ये भी कन्वर्जन. सो 0.5 into 10 रेज़ टू माइनस 10 इधर क्यूब है. देखो, अब आप इसका सिंप्लीफिकेशन दोगे, इसका आंसर आएगा एग्जैक्टली मैं बताऊं. सो इट इज सिंपली 3.151 into 10 रेज़ टू माइनस 7 मीटर क्यूब. दिस इज योर आंसर. Answer of this question number 2.16. What is the meaning of this V mole? It is called 1 mole volume of 1 mole gas. वापस केमिस्ट्री जैसे मैं वापस समझाता हूँ आपको. एक ऐसा हाइड्रोजन एटम दिया है, एटम ऑफ एनी गैसियस मटेरियल ऑलवेज इन द शेप ऑफ स्फीयर, और ये स्फीयर की रेडियस दे दी है 0.5 एंगस्ट्रॉम. तो अपन लोग एक एटम ऐसा स्फेरिकल गोला है, उसका एक एटम का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूला से. मगर अपने को पूछा है 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम फाइंड करो. सो 1 मोल सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं?
from today you know that one mole substance always possess number of atoms equal to Avogadro number. And what is this Avogadro number? It is 6.023 10 raised to 23 एटम्स. तो एक मोल हाइड्रोजन एटम्स में इतने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, तो एक का वॉल्यूम इतना, तो इतने का वॉल्यूम कितना? आंसर यू कैन सी दिस इज कॉल्ड मोलार. यू कैन सी दैट वॉल्यूम, वन मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है उसको मोलार वॉल्यूम कहते हैं. डोंट वरी. सो नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. तो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.17 में, इसके बाजू में ही है तो मैं ले लेता हूँ 2.17. डोंट वरी. तो ये सब क्वेश्चन है वो ऐसे तो पूछने के चांसेस ठीक ठाक है फ्रेंड्स, मगर फिर भी अपन लोग जिसे कह सकते इसको इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि आपके सर लोग शायद तो टेस्ट में पूछे तो टेंशन नहीं. बाकी इस चैप्टर का हमने मोस्ट ऑफ सब देख लिया. एक टॉपिक को छोड़ा ताकि वो बाद में डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट, क्योंकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. डोंट वरी. Okay friends, so 2.17. Now 1 mole of an ideal gas at standard temperature pressure occupies 22.4 liter volume. Okay, it is called molar volume. 1 mole of ideal gas. So molar volume of ideal gas given, it is 22.4 liter. It is called molar volume, 22.4 liter. मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है ये जो मटेरियल है उसमें जो गैस भरा है, ये गैस का कंप्लीट वॉल्यूम. इट इज आइडियल गैस इसमें भरा, उसका मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर. एंड 22.4 लीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कोई बोले कहाँ से आया? सो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव कन्वर्टेड लीटर टू मीटर क्यूब. सो दिस इज मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. अपने को क्वेश्चन पूछा है देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन. तो अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम यानी टोटल वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम टू वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन गैस. चलो व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम ऑलरेडी विथ अस 22.4 into 10⁻³ and what is the volume of 1 mole hydrogen gas? तो 1 mole hydrogen gas का वॉल्यूम ये है हमारे पास, it is 3.151 10⁻⁻7. इसको सिंपलीफाई करो, आंसर आएगा 7.108 10⁻⁴. This is your answer of this numerical number 2.17. एकदम top type you can see it. So friends, analyze, then we'll think about few more. Okay, now we would like to think about one or two एक तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चले. ओके ओके ये 2.29 में सोल्व करवाता हूँ. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. सो विल डिस्कस 2.29. उसके ऊपर से 2.30 और 2.31 आपको होमवर्क में करने हैं ताकि आपको पता चले. बाकी भी बीच में भी हमने न्यूमेरिकल्स सोल्व कर दिए, तो मतलब काफ़ी सारे आंसर भी हमने कवर कर लिए. मगर नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट 2.29 now. Okay friends, so we'll read the data. This is you can see that important for MCQ point of view. जरा देखना, laser is a source of very intense monochromatic and unidirectional beam of light. This properties of laser light can be explained to measure the long distance. laser का यूज करके हम लोग long distance measure कर सकते हैं. 2.29 यानी आप टेक्स्ट बुक को साथ में रखो. Okay, using a laser, a source of light, a laser light is beamed at the moon takes 2.56 seconds to return after the reflection. देखो क्या, this is your earth, this is the earth. यहाँ पे लेजर बीम रखा है, this is the moon. रेडी, यहाँ से लेजर बीम देगा और ये रिफ्लेक्ट होके वापस कैप्चर किया जाता है. ये t0 सेकंड पे बीम को इंसिडेंट किया जाता है. बीम यहाँ से निकला, देखो ये रहा लेजर बीम. एंड दिस लेजर बीम इज मूविंग टुवर्ड्स मून एंड
after reflection from the moon surface, this is moon, it is again captured on the surface of the earth, but at t is equal to 2.56 second. ऐसा क्वेश्चन पूछा है. then what is your answer? how much is the radius of the lunar orbit around the earth? तो ये जो रेडियस है इसको क्या कहते हैं? ल्यूनार ऑर्बिट कहते हैं. दिस इज ल्यूनार ऑर्बिट एंड दिस इज कॉल्ड ल्यूनार रेडियस. तो अपने को हाउ मच इज द रेडियस ऑफ द ल्यूनार ऑर्बिट, ये ल्यूनार ऑर्बिट ये हमें फाइंड करना है. ओके, सो वेरी इजी. हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेजर लाइट. हियर लेजर light is incident or is used. So keep in mind, laser is one type of light. What is the velocity of light? So velocity of laser beam, it is 3 into 10 raised to 8 meter per second. What is the velocity of light? 3 into 10 raised to 8. तो velocity हम जानते हैं. देखो यहाँ से निकला ये डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ r. तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? यहाँ से निकला r, इधर स्ट्राइक होके वापस आया दूसरा r. So what is the total distance traveled by this laser beam? 2r. So what is the, we can say the time taken for to complete this distance 2r. यहाँ से निकलने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आने के लिए टोटल टाइम लगा 2.56 सेकंड. 2.56 सेकंड में टोटल डिस्टेंस हुआ 2r. तो अपन लोग जनरल फॉर्मूला अप्लाई करें. velocity is equal to distance upon time. So अपन लोग तो डिस्टेंस फाइंड करना है r. So distance is equal to velocity multiplied by time. What is the velocity? Distance travel, first of all distance travel 2r, check it 2r, and velocity v into time t. So 2r, sorry अपने को r फाइंड करना हो तो it is vt divided by 2. 2 इधर भेज दिया. What is the velocity? Velocity already we know that 3 into 10 raised to 8. What is the time? 2.56 divided by 2. And if you simplify, then already I can use one answer here. Just a minute. So it is 3.84 into 10 raised to 8 meter. तो ये रेडियस होगा ल्यूनार ऑर्बिट का. तो अपन लोग जानते हैं अर्थ से मून जिस ऑर्बिट पे मोशन कर रहा है उसकी अर्थ से दूरी होगी इतनी. यू कैन सी 3.84 into 10 raised to 8. सो फ्रेंड्स 2.29, 2.30, 2.31 इसके बाइज है. बिल्कुल इसी मेथड पे सॉल्व करने. ना पता चले तो आप मुझे पूछ सकते हो. आज का लेक्चर में जो हीरोज थे वो 2 लेक्चर, पहले 2 क्वेश्चंस उसको खास अच्छी तरह करो, उसको सोल्व करो. और बाकी जितने न्यूमेरिकल्स मैंने चलाए वो एक बार होमवर्क में लिख के सर को सबमिट करवाना है. ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. जो पहला क्वेश्चन था उसके रिलेटेड, फर्स्ट क्वेश्चन था अपना एरर का, उसके रिलेटेड मैं दे रहा हूँ जो ट्राई करना है. इफ रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 200 प्लस और माइनस 4 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 400 plus or minus 6 ohm, then find total resistance. Then find total resistance for series and parallel combination. You can see most IMP. It is very similar to 2.10. मैंने डेटा चेंज करके दिया है. होमवर्क में सॉल्व करना है. आंसर मैं बताता हूँ. आंसर आपका एक काम करो अपन लोग, आंसर मुझे आपको मैसेज करके सॉल्व कर देना है. आप जो भी सॉल्व करो मैसेज करो. ऐसा देखना, सपोज आपका नाम है देवर्स कोटक तो आपको ऐसा देवर्स कोटक आंसर सपोज 2.33. तो मैं चेक करूंगा सही है कि नहीं. ये सब सक्सेसर को भेज देना. एनीवे फ्रेंड्स, दिस इज यू कैन सी दैट फॉर होमवर्क मोस्ट IMP. So today's lecture, no doubt, I can say that NCERT based. Think about it. Next time we start new chapter, chapter number 3. Be ready for it. Thanks friends. मिलते हैं. Be safe.